بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نائلہ ہے۔ میرا ایک ہی بھائی تھا اور میں سب بہن بھائیوں سے چھوٹی تھی۔ میری 2 بہنیں مجھ سے بڑی تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی۔ اب بھائی کی بھی شادی ہو رہی تھی، جس کی سب سے زیادہ خوشی مجھے تھی، کیونکہ جب سے بہنوں کی شادی ہوئی تھی میں گھر میں اکیلی رہ گئی تھی اور اب بھابھی کے آ جانے سے میرا دل لگ جاتا تھا۔ یہی تصور مجھے خوش کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے بھائی کی شادی کے ہر فنکشن پر بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر انجوائے کیا تھا۔ بھائی کی شادی کے ہر فنکشن میں بہت انجوائے کیا، تصویریں کھنچواتی تھی، لیکن رخصتی کے وقت میری آنکھوں نے دیکھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھابھی دلہن بنی تاج میں بیٹھی ہوئی تھی، سب مہمان جا چکے تھے۔ مجھے لگا امی کہیں تم اپنی بھابھی کو اس کمرے میں لے جاؤ، لیکن امی نے مجھے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ میرے ابا نے بھائی کو اپنے کمرے میں بلایا۔ میرا بھائی اپنی خوبصورت سی دلہن دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ابا کی پکار پر خاموشی سے ان کے کمرے میں چلا گیا۔ میں بھابھی کے پاس ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ وہ بہت خوش مزاج لگ رہی تھی۔ مجھ سے میری تعلیم کے بارے میں دریافت کیا، سوال جواب کرنے لگی۔ میں اس وقت 12ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ میں بھابھی سے اپنے دوستوں کا ذکر کرنے لگی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، لیکن ان کی نظریں بار بار سامنے ابا کے کمرے کے بند دروازے پر جا کر رک جاتی۔ امی مجھے اپنے کمرے میں جا کے سو گئی تھی، بس میں ہی بھابھی کے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے بات یہ سمجھ نہیں آتی تھی، امی کیوں اتنی جلدی سونے چلی گئی تھی۔ حالانکہ امی شادی پر بہت خوش تھی، لیکن جب سے رخصتی کروا کر بھابھی کو گھر لائی تھی، ان کا موڈ بہت خراب لگ رہا تھا، اسی لیے چاہتے ہی منہ پھلائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا امی کو گھر آتے ہی کیا ہو گیا تھا۔ بھابھی بھی کچھ چپ چپ تھی۔ میری شادی شدہ بہنیں بھی خراب موڈ کے ساتھ حال سے ہی واپس لوٹ گئی تھی، گھر بھی نہیں آئی تھی۔ دلہن کا استقبال کیا جاتا۔ آدھے گھنٹے بعد سامنے کمرے کا دروازہ کھلا۔ بھائی بڑی سنجیدگی سے کمرے سے باہر آئے تھے۔ مجھے اور بھابھی کے پاس بیٹھے دیکھ کر کہنے لگے، تم سونے نہیں گئی، اپنے کمرے میں جاؤ، جا کے سو جاؤ۔ مجھے بھائی کی بات پر حیرت ہوئی کہ وہ کس رکھ لہجے میں بات کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد جو بات بھائی نے کی وہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ بھائی کہنے لگے، رابعہ تم اپنے ابا کے کمرے میں جاؤ، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں جو اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی، میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے برجستہ پلٹ کر دیکھا، بھابھی بھائی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ ان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ میں اپنی شادی کی پہلی رات بھلا کون سی دلہن یوں سج سنور کر اپنے سسر کے کمرے میں جاتی ہے۔ ایک بات اور کہ میری والدہ اور والد الگ کمرے میں ہوتے ہیں۔ اسے پہلے کہ میں دیکھتی بھابھی جواب یہ دیتی ہیں، بھائی نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا، لیکن میں اتنی چھوٹی بھی نہ تھی ان باتوں کو سمجھ نہ سکی۔ کمرے میں آتی لیکن میرا پورا دھیان باہر تھا۔ میں پہلے تو اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی کہ آخر ابا نے بھابھی کو اپنے کمرے میں کیوں بلایا تھا۔ میں کچھ دیر تو اپنے کمرے میں بے چین سی رہی، لیکن اس کے بعد اپنے کپڑے تبدیل کر کے میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ مجھے اپنے سامنے کچھ نظر نہ آیا۔ بھائی باہر نہیں تھے، بھابھی ابا کے کمرے سے نکلی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں نے اپنے کمرے سے جھانک کر دیکھا، روتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ نہ جانے کیوں میرا دل بجھ سا گیا۔ میری بھابھی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت معصوم تھی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، رو رہی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن مجھے رات بھر چین سے نیند نہیں آئی تھی۔ بمشکل ہی کچھ دیر کے بعد سوئی تھی، میری آنکھ ایک شور سے کھلی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، مجھے لگا امی کسی پر چلا رہی ہیں۔ میں حیران ہوئی، صبح صبح امی کس پر چلا رہی تھیں۔ میں نے جھٹ سے کمبل اتار کر سائڈ پر رکھا اور تیزی سے کمرے سے باہر آ گئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ امی میری نئی حویلی بھابھی پر چیخ رہی تھیں۔ مجھے زبان چلانے والی عورتیں بالکل پسند نہیں۔ خبردار، تم نے آج کے بعد مجھے کسی بات کا جواب دیا، چلو جا کر کچن میں ناشتہ بناؤ۔ میں اپنی ماں کا یہ روپ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میری شادی شدہ دونوں بہنیں اپنے شوہروں اور بچوں کے ساتھ
वहाँ मौजूद थीं। मुझे हैरत हो रही थी, एक दिन की दुल्हन के साथ मेरी माँ ऐसा भी रवैया कैसे इख्तियार कर सकती है। मैं तेज़ी से आगे बढ़ी, मम्मी से कहा, नाश्ता मैं बना देती हूँ। भाभी की भी रात को ही तो शादी हुई है। लेकिन मेरी बात पर मेरी माँ हत्थे से ही उखड़ गई, कहने लगी, खबरदार तुमने इस लड़की की हमायत की, आज के बाद सारे काम यही करेगी। मेरी भाभी किचन में चली गई। मेरी बहनें कहने लगीं, अम्मी हमारे तो ससुराल में नाक कट गई। एक इकलौता भाई जिसकी शादी इतने चाव से की, उसके ससुराल वालों ने तुम्हें सोने की कोई चीज़ ही नहीं पहनाई। ऊंची दुकान, फीका पकवान मना। मेरी बहन ने नफरत से कहा। अब मुझे मेरी माँ बहनों का किस बात पर मुँह सूजा हुआ था। मेरी भाभी जहेज इतना नहीं लाई थी। मुझे बहनों की सोच पर अफसोस हो रहा था, जबकि अम्मी भी शुरू हो गई। होना मेरा बेटा एक ही था। कितने पैसे लग गए थे इसकी शादी पर। मुझे तो लगा था अमीर लोग हैं, गाड़ी तो ज़रूर मेरे बेटे को जहेज में मिलेगी, लेकिन नहीं, ऐसे कंजूस लोग बात इतनी खूबसूरत मिला ही खाली हाथ हमारे पल्ले बांध दी। मेरी भाभी इस वक्त आम से होलिये में नाश्ता बना रही थी। कहीं से भी एक दिन की दुल्हन नहीं लग रही थी। मेरी माँ बहनों को जहेज ना मिलने का फर्क सताने लगा। मेरा जी चाहा भाई के कमरे में जाऊं, इनसे कहूं अपनी माँ बहनों का रवैया अपनी एक दिन की दुल्हन से जाकर देख लो, जिन बहनों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तुम खुद ही शादी देर से की है। मेरा भाई सबसे बड़ा था और था भी घर वालों का निहायत ही फर्माबरदार, इसलिए दोनों बहनों की शादी पर मेरे भाई ने बहुत जहेज दिया था। और जब इसकी शादी हुई तो इन्हें तवक्को के मुताबिक कुछ ना मिला। भाई जब कमरे से बाहर निकले तो हशाश बशाश कुछ नहीं बोले थे। अम्मी से बहुत डरते थे। मैं जानती थी मेरा भाई मेरी वालदा का फर्माबरदार है, इसलिए मैं चाहती अम्मी जैसी ही सोच भाई की होगी। अम्मी, मेरा ये अफसोस ही काम ना हुआ। अब्बा जब अपने कमरे से बाहर निकले तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। अब्बा को देखकर मुझे याद आने लगा, भाभी दुल्हन बने रात अब्बा के कमरे से रोती हुई बाहर निकली थी। मुझे लगा शायद अब्बा ने कम जहेज मिलने पर भाभी को ताने मारे होंगे, लेकिन बात कुछ और थी। अब्बा जब नाश्ते की मेज़ पर बैठे तो मेरी भाभी की अब्बा को देखकर रंगत तोड़ गई। वह हर दर्जा घबराई हुई थी। मैं भाभी के चेहरे की बदहवासी देखकर हैरान थी और अपने अब्बा की चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। फिर तो सबका यही रवैया भाभी के साथ शुरू हो गया था। हर वक्त डरे सहमी ही रहने लगी थी। सारा दिन वो काम करती रहती और रात को जब कमरे से बाहर निकलते तो भाभी को इशारा करते वो अब्बा के कमरे में पहले जाएं। वो बेचारी परेशान हाल अब्बा के कमरे में जाती थी, लेकिन जब वो कमरे से आती तो बुरी तरह से हाँफ रही होती, पसीने से शराबोर होती, रोते हुए अपने कमरे में चली जाती। फिर मुझे उनकी ऐसी आवाज़ें कमर सुनाई देती, वो उल्टियाँ कर रही हों। उनके चेहरे की नागवारी से यही लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा ख्याल करके आई हो। मुझे ये बात जिससे खुश बात में डालती वो कुछ अच्छा नहीं था। अंदर ही अंदर मैं खुद को मलामत करने लगती। पूरा दिन मेरी माँ मेरी भाभी का जीना हराम करके रखती थी। रात को वो 2 घंटे अब्बा के कमरे में गुजार कर वापस आती और आते ही अपने कमरे में चली जाती, नहाकर वापस आती। मुझे इसकी बात हैरत थी। अब्बा नहीं क्यों अपने कमरे में बुलाते हैं, भाई भाभी को इशारे से अब्बा के कमरे में भेजते हैं। और मेरी माँ को भी बर्तन धो रही थी, मैं अपने कमरे में थी, लेकिन मुझे भाभी की फिक्र सताने लगी। उनकी आंखों में हर वक्त आंसू देखते थे। मुझे बहुत दुख होता था कि जहेज ना देना औरत का इतना बड़ा ऐब है। मैं घड़ी देखती, रात के 1 बज रहा था। जानते थे सब सो चुके होंगे, इसलिए मैं किचन में चली गई ताकि भाभी की कुछ मदद कर दूं। लेकिन कुछ किचन में देखा, मैं तंग रह गई। मेरी भाभी के हाथ में मोबाइल था, किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। वो मोबाइल शायद मेरे भाई का था। इस वक्त हो चुके थे। हो सकता है वो चोरी छुपे मोबाइल लेकर आती हों, अपने घर वालों से बातें करती हों। कौन हो सकता है जिससे मेरी भाभी बातें कर रही थी। रो भी रही थी क्योंकि मेरी भाभी अपने चचा के घर रहती थी। उनके माँ बाप की एक
हादसाती मौत में मर चुके थे और चचा ने रिश्ता तो भाभी का यही तय किया था। उनकी एक ही बेटी जैसी थी, लेकिन शादी पर भाभी को कुछ नहीं दिया था, जिसकी वजह से मेरी माँ और बाकी घर वालों का रवैया उनके साथ बहुत बुरा था। फिर एक बार भाभी ने मुझे बताया उनकी बच्ची उनके साथ बहुत बुरा रवैया रखती है, आप पर बहुत जुल्म करती है। चचा की अपनी 3 बेटियां थी, इसलिए वो भले ने क्यों छेड़ देते। जो कुछ भी मेरी भाभी के वालिद का हिस्सा था वो सब इसके चचा के कब्जे में था। वो बेचारी तो वहाँ से भी तभी आई थी, लेकिन वो इस वक्त किस बात पे रो रही थी, क्योंकि इनकी शादी के बाद इनके चच्ची ने पलट कर इन्हें देखा भी नहीं। वो किस हाल में है। मुझे ये भी लग रहा था जिससे वो बात कर रही हैं वो कोई मर्द है। मेरी भाभी के साथ यहाँ भी कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा था। मेरा दिल इस बारे में सोच कर कटता रहता, लेकिन जो मुझे बात शक में डाल रही थी, मेरी भाभी इस वक्त जिससे बात कर रही थी वो कोई मर्द ही था। मेरी भाभी उसे कह रही थी, मुझे यहाँ से ले जाओ, तुम नहीं जानते ये लोग मेरे साथ कैसे सलूक करते हैं। और वो शख्स है जो किस कदर घटिया इंसान है। काश कि जो जुल्म वो मेरे साथ करता है इसकी बेटी के साथ हो, वो सब तो इसे पता चले। ये बात सुनकर मैं वहीं से पलट कर अपने कमरे में आ गई। न जाने वो कौन शख्स था जिससे मेरी भाभी बात कर रही थी, और अब्बा ऐसा क्या करते थे भाभी के साथ। मुझे अब्बा की हरकत खुद भी पसंद ना थी, लेकिन मेरे तक लग गई। फिर मैंने सोचा अब्बा ये क्यों नहीं सोचते जो कुछ वो भाभी के साथ कर रही हैं। अगर मेरी बहनों के ससुर भी उनके साथ करेंगे तो बर्दाश्त करेंगे क्या। मेरा भाई क्या बिल्कुल बेगैरत हो चुका है, जो खुद अपनी बीवी को अपने बाप के कमरे में भेजता है। हालांकि मेरा बाप मेरी बहनों से कहता था कोई ज़रूरत नहीं है अपने ससुर की खिदमत करने की, न ही उसके कमरे में अकेले जाने की। मेरी दोनों बहनें बहुत तेज़ तराज थीं, अपने ससुराल वालों को नचा कर रखा हुआ था। शौहर भी इनके काबू में थे, और जब यहाँ आती तो भाभी की शामत लाए रखती थी। हर वक्त उन्हें जहेज ना लाने के ताने देती। वालदा भी किसी से कम न थी, पूरा दिन मेरी भाभी के पीछे ही पड़ी रहती थी। दिन में 1 घंटा भी भाभी के लिए आराम नहीं मिलता था। मैं सिर्फ भाभी की मदद कर देती जब अम्मी सो रही होती थी। वो मुझसे कभी कभी अपने दिल की बात भी कर लेती थी, लेकिन जब भी मैं इनसे पूछती कि अब्बा इन्हें कमरे में बुलाकर क्या कहते हैं, तो उनकी रंगत उड़ जाती थी। वो एकदम ही फाक रंग के साथ नफ़ी में सर हिलाने लग जाती थी। मेरे जहन में बहुत सारे सवालात थे जिसके मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी भाभी मुझसे बात करते करते घबरा जाती थी। एक दिन जब मेरी भाभी मेरे अब्बा के कमरे में गई तो मैंने इनसे पूछा, अब्बा भाई को क्यों रोज़ अपने कमरे में बुलाते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे कहर भरी नज़र से देखने लगी, कहती, मुंह बंद रखा कर अपना, खबरदार ये दोबारा ऐसे भी कोई सवाल मुझसे पूछा। तो मुझे अम्मी पर बहुत हैरत होती थी कि वो क्यों कुछ नहीं बताती। मैं अपनी भाभी की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। एक बार मैंने सोच लिया था मैं भी देखूंगी आखिर अब्बा कमरे में भाभी के साथ कहते क्या हैं। मेरा भाई मेरे बाप से बहुत ही डरता था, इसलिए जो बात अम्मी या अब्बू कहते थे वो कभी इसके खिलाफ नहीं जाता था। एक जब भाभी के कमरे में कहीं कुछ देर बाद मैं भी अब्बा के कमरे में जाने के बहाने से जाकर देखूं, मेरी माँ ने मुझे फ़ौरन से टोक दिया, कहने लगी, खबरदार तुम कमरे में गई तो। मैंने कहा, क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती, मुझे अब्बा से काम है। अम्मा ने कहा, जब तक तुम्हारी भाभी कमरे में है तुम नहीं जाओगी। चलो जाओ अपने कमरे में। एक रात तो कुछ मेरी आंखों से देखा सोच भी नहीं हो सकती। रात को मैं जानने प्यास लग गई, लेकिन जैसे ही लाउंज से होती हुई किचन की तरफ बढ़ने लगी, मुझे लाउंज का दरवाज़ा खुला था। मैं ये सोचने लगी, रात किसने खोला। जब मैं दरवाजे से बाहर आई तो मेरी भाभी सहन से होते हुए छत की तरफ जा रही थी। मैं ये सोच रही थी, इस वक्त छत पर क्या करने जा रही हैं।
भयानक। भाभी के पीछे चल दी, लेकिन जैसे ही छत पर पहुंची मैंने छुप कर देखा। मेरी भाभी एक नौजवान के गले लगकर रो रही थी। ये देखकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई। वो शख्स यही कह रही थी, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। कौन था वो शख्स? भाभी का क्या लगता था? वो कोई आशिक था? मैं वापस लौट आई। मुझ पर घबराहट से तारी हो गई थी। ये सब कुछ क्या हो रहा था? एक तरफ तो मेरी भाभी मजलूम बनी हुई थी, तो दूसरी तरफ कौन सा रोग था जो मैं देख रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे भाभी का एक नया रूप देखने को मिला था। मैंने सोचा जिस सब जगह कर भाभी की असलियत बता दूं। मैं जैसे ही लाउंज के अंदर आई, अपने कमरे में वापस जा सकूं, लाउंज के सामने मेरा भाई खड़ा हुआ था। भाई को देखकर मेरे आसान खता हो गए। वो मुझसे कहने लगे, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं परेशान सी हो गई, क्या जवाब दूं? मैंने घबराहट हो रही है इसलिए ताज़ी हवा के लिए बाहर आ गई। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हारी भाभी कहाँ है? पूरे घर में नज़र नहीं आई। मैं और भी घबरा गई, क्या कहूँ। इसी शीशापन में मुब्तला थी कि भाभी आई। देखकर उसके भी होश उड़ गए थे, लेकिन मैंने इन्हें बचा लिया। मैंने कहा, मैं और भाभी दोनों ही बेड सेन में बैठी हुई थी। मेरी बात सुनकर भाभी कुछ दंग रह गई थी और कहने लगी, हाँ मैं इसके साथ ही थी। मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन अगले रोज़ मेरी भाभी मेरे कमरे में आकर मैं शुक्रिया अदा करने लगी कि मैंने उसे बचा लिया है। मैंने कहा, कोई बात नहीं। फिर मैंने इनसे पूछ लिया कि वो छत पर क्यों गई थी और जो शख्स छत पर था वो कौन था। वो कहने लगी, वो मेरा भाई है जिसे चचा के बचपन से ही घर से निकाल दिया था ताकि बड़ा होकर अपना हिस्सा ही ना मांग ले। मेरा भाई कहीं छोटी मोटी नौकरी करता था, इसीलिए मेरी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन वो खुद अब एक बिजनेसमैन बन चुका है। बहुत जल्द यहाँ से वापस चली जाऊँगी। मुझे भाभी की बात सुनकर हैरत हो रही थी। मैंने कहा, आपने पहले बताया नहीं, आपका कोई भाई भी है? वो कहने लगी, क्या बताती। इस घर में आते ही मुझ पर जुल्म सितम शुरू हो गया। मुझे लगा था कि मेरी आजमाइशें शादी के बाद ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे लिए और मुश्किल खड़ी हो गई। मैंने पूछा, क्या आप मेरे भाई को छोड़ देंगी? कहने लगी, तुम्हारा भाई मेरे लिए होता ही नहीं, कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। मैं ऐसे शख्स के साथ क्या ज़िंदगी गुजारूंगी? इनकी बात तो दुरुस्त थी। फिर कहने लगी, तुम्हारे वालिद भी अच्छे इंसान नहीं है, मैं वो सब नहीं कर सकती। मैंने कहा, अब आपसे क्या करवाते हैं? मेरी बात वो कहने लगी कि इस दिन खुद जाकर देख लेना। मैंने भाभी से कहा, आज मैं आपके कपड़े पहनकर अब्बा के कमरे में जाऊंगी, क्या आप कमरे में खुद को बंद कर लेना। वो मेरी बात मान गई। रात को भाभी के कपड़े पहनकर उनके कमरे में गई। मैंने घूंघट में अपना मुंह छुपा लिया। मुझे देखकर अब्बा यही समझे थे कि मैं भाभी हूँ। फिर अब्बा ने कहा, मैं काला अमल सीख रहा हूँ, इसलिए मुझे ये जिंदा मुर्गियाँ हलाल करके दो, मुझे इनका खून गिलास में डाल कर दो। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं अब्बा कौन सा इल्म सीख रहा था। अब्बा ने 3 मुर्गियाँ हम निकाल कर कहा, इसे काट कर इस गिलास में डाल दो, मैं पीऊँगा। फिर बोला कि आप जाकर एक अमल है, इसके बाद जो चाहूँ जिन्नात से करवा सकता हूँ। ये कहकर वो कुछ उल्टा पढ़ने लगे। मैंने मुर्गियों के साथ ऐसा कुछ ना किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरा बाप कोई ऐसा अमल सीखे। शायद भाभी भी इसी वजह से घबराती थी, उल्टियाँ करती थी, नहाती थी। मुझे ये सोचकर घिन आ रही थी। मैं बहुत घबरा गई थी। ऐसे गलत कलमात पढ़कर आप अज़ाब के मुरतब होंगे। मैं और इन्हें कहना चाह रही थी कि दौलत कमा सकूं। मैं समझाने का नतीजा निकला, अब्बा इस काम से पीछे हट गए। मैंने भाभी से ये कहा, वो अपने भाई की शादी मुझसे करवा दें। अपने घर वालों से कहूँगी, अगर आपने भाभी पर जुल्म किया तो वो आपका बदला आपका भाई मुझसे लेगा। भाभी को मेरा मशवरा अच्छा लगा। इस तरह मेरी शादी भाभी के भाई से हो गई। मेरे घर वालों का रवैया भी ठीक हो